Yes, today I will discuss about the question on multiplication with the word problem. So, title of my lecture will be questions, बहुवचन on multiplication, multiplication word problem. Word problem. This is my topic of my lecture today. Problem spelling is wrong, so I will just correct it. प्रॉब्लम देखिए गलती जो है बड़ों से हो रही तो छोटे से होगा, इसलिए बड़ी केयरफुली आई एम ट्राइंग टू नॉट डू द मिस्टेक. अब देखिए, आई एम गिविंग द एग्जांपल 1. This is a word problem. So there are 4 bags. There are 4 bags. Each bag contains 3 balls. Now I've chosen the problem with the short sentence, and generally the student use the small ball, bigger ball. So you can do experimentally also. Now the question is, what is the total number of balls? अब देखिए, in this question very things are clear very easy. For example, suppose solution I am writing. Now we should find what are the things which are given. Just see, the question is what is the total number of the balls. That means you have to find out the total number of the balls. So first write here total numbers of ball इक्वल टू करके क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट दैट वन. व्हाट आर द गिवन. अब देखिए, देयर आर 4 बैग्स. ये अंडरस्टूड करता है कि बैग इज द नंबर ऑफ ग्रुप. तो यहां लिखिए नंबर ऑफ ग्रुप. नंबर ऑफ ग्रुप क्या है? 3 है, नहीं 4 है. और ग्रुप का मतलब बैग, ये ध्यान रख लीजिएगा. जो है ग्रुप का मतलब बैग. व्हाट इज अदर? ईच बैग कंटेन्स 3 balls. दैट मीन्स number of balls in each group. A group means bag. Bag is 3. Now you know the formula of this. What is the formula? देखिए, formula which I have already told you. Formula क्या formula?
number of objects are items. You can say items also. Items in each group. In each group मतलब here it is a bag. What is that? 3. नहीं, अभी मैं ये टोटल लिख रहा हूँ, ये फार्मूला लिख रहा हूँ, इसलिए मतलब जो है वी हैव टू केयरफुल. 3 अभी यहाँ हमको नहीं लिखना है. और फार्मूला क्या है? इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स. नंबर्स ऑफ ग्रुप. ग्रुप मतलब बैग. और इसके बाद क्या है? दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स यहां पर क्या है? बॉल है. चलिए कोई बात नहीं, यहां पर बॉल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. बॉल. अब ये फार्मूले को यूज करना है. एवरीथिंग इज गिवन हियर, सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट. और बी केयरफुल कि दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड. सो दिस फार्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाइए. फार्मूला आर टोटल नंबर्स ऑफ, वहां लिखा है ऑब्जेक्ट्स, बॉल इज इक्वल टू, बिकॉज लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो राइट को पहले लिखे, लेफ्ट को बाद में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स here means ball. Object, number of objects in each group or bag. मैं दोनों इसलिए लिखा हूं कि स्मॉल बच्चे हैं और समझ नहीं पाएंगे. एंड इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स. ग्रुप्स मतलब बैग. अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 3 itself. सो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना है? देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स बॉल कितना है? 3 है. और नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना है? 4 बॉल है. इक्वल टू कितना हो जाए? 4 3 जा 12 बॉल. दिस इज द आंसर. Now I am giving you the example 2 just to test the students whether he or she knows table from 0 to 10 or not. So that is the example 2. Example 2. देखिए, मल्टीप्लाई I have already told many times that all the tables come under the multiplication, and because of that I say multiplication table. So if you just say multiplication table, so students will remember that all the table are multiplication table, and in each there is a multiplicants, multiplier and product. Multiply the number, multiply numbers at center by number
number in a given circle, and show the product in outer circle. ये क्वेश्चन है. Now, why I have chosen this question and also given many books that you can test the student ability to whether he or she knows table or not. So there will be 3 circle. I will try to make it. This is the one circle, the innermost, then there is another circle, and then the outermost circle. अब देखिए, now in innermost circle 7 is given. So assume the 7 is the multiplicand or multiplier. You can choose any one. अब देखिए, अब इसको हम कितने भाग में बांटे हैं? 1, ये इस तरह से हो गया, फिर ये हो गया, और फिर ये हो गया, और फिर एक इधर भी बांट रहा हूं और इधर भी बांट रहा हूं, और इधर भी बांट रहा हूं और इधर भी बांट रहा हूं. अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है. यहां पर हमने लिखा है, कहां से लिखा है? ये 1, 7, 5 गड़बड़ा गया. देखिए 5, 0, 3, 6, 4 and 8. अब देखिए, गिवन सर्किल सेंटर पर दिया है 7 है. अब 7 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे ये लिखना है 7 1 जा. तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट एग्जाम्पल में दे रहा हूँ. इसको मैं इंटू कर दूँ. 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7. बट यू डोंट हैव टू पुट 7 8 जा, 7 4 जा. सो यू कैन अंडरस्टैंड द स्टूडेंट शुड एबिलिटी टू नो द टेबल और नॉट. अब देखिए, अब हिंट मैं दे रहा हूँ कैसे किया जाएगा. हिंट है द सेंटर नंबर is multiplicand. Inner circle is multiplier. सो क्या करना है? फाइंड द प्रोडक्ट इन आउटर मोस्ट सर्किल. अब मैं यहां फार्मूला लिख दे रहा हूं क्योंकि लड़के याद नहीं करते हैं, घर पर नहीं पढ़ते हैं. दिस इज माई एक्सपीरियंस इन दिस बेल्ट. सो द फार्मूला यूज जो करना है, लेकिन आपको नहीं देना है फार्मूला. इज मल्टीप्लिकेंट into multiplier is equal to product. And in the past, अब देखिए क्वेश्चन जो है कैन बी आस्क्ड डिफरेंटली कि इनरमोस्ट कैन बी मल्टीप्लायर
and the first circle will be multiplicand and fill up the gap. So multiply the number. तो ये आपका एग्जाम्पल है माइंड प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा. मैथ में माइंड प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज आई एम कंसर्न. नाउ आई एम गोइंग टू गिव अनदर एग्जाम्पल 3. अब देखिए एग्जाम्पल 3. अब देखिए देर आर 8 मंकी monkeys playing on a tree. गांव के बच्चे हैं, मंकी को पेड़ पर खेलते हुए देखते रहते हैं. अब देखिए, इफ देयर आर 26 tree. Find out the total numbers of monkey. अब देखिए, अब सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं. द किड्स शुड अंडरस्टैंड दैट if you multiply 8 to 2, it will be 16. So vertical method इसको choose करना चाहिए. So I am giving here example. First write O and T, and then write 26, then multiply by 8. Again, here repeat multiplicand and this is multiplier. And then this is product. This is the multiplication of 2 digit by single digit. Be careful on this thing. So we have to, how you do it this thing, stepwise. In higher classes there is no need to write step, but this is the class 3 student, so one should be very careful about that. अब देखिए, आप step 1 लिखिए. यहाँ से मैं लिखना शुरू करता हूँ. step 1. और इसको बहुत सिंपल में बताइए. देखिए 6 और 8 वंस के नीचे है. दिस इज 6 and 8 बिलो वंस. सो फर्स्ट, अब ये फर्स्ट टर्म ये है. देखिए यहाँ पे लिखा रहता है फर्स्ट टर्म. ये फर्स्ट टर्म अभी छोड़े, मैं नहीं लिखता हूँ, बाद में लिखूंगा. तो अभी स्टेप 1 का क्या है कि मल्टीप्लाई 6 by 8 कहिए, और यू कैन से 8 by 6 कहिए. अभी मल्टीप्लिकेशन इनको पता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 8 जा 48. और जब ध्यान देखा, ये 48 के बाद 2 डिजिट्स हो गया. यू हैव मल्टीप्लाई 1 डिजिट by 1 डिजिट, बट प्रोडक्ट इज 2 डिजिट्स. और इस पर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि राइट O and T. अब देखिए,
अब इसको कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से समझिए। इसको आप लिख सकते हैं 40 + 8। जरा ध्यान से समझिए, ये O है, ये भी O है, ये T है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको कैसे और भी कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 40 ones + 8 ones. There are many ways to write all these things. And 40 ones is equal to 4t + 8 ones. यहां मैं वो नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 80 समझ लेंगे लोग। अब देखिए सिंपल है, स्टेप 2, राइट 8 ones below ones of sum, no product. ये प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट्स का वंश क्या है, ये है, ये प्रोडक्ट है, वंश इसका ये है, तो यहां पर राइट करिए 8। दिस सेकेंड स्टेप बहुत। और स्टेप 3 देखिए, कैरी ओवर 4t, यहां पर t कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, एबव t ऑफ मल्टीप्लिकेंट्स, मल्टीप्लीकेंड। अब देखिए ये सब वर्ड हम लोग यूज नहीं करते, मल्टीप्लिकेंट्स भी हो जाता है, डोंट माइंड इट। अब ये सिंपल इंस्ट्रक्शन है कि आप 4 को इसके ऊपर कैरी ओवर करिए। कैरी ओवर मतलब ऊपर, कैरी मतलब हटा के वहां पर रख दीजिए, जो है हो गया। अब देखिए स्टेप 4, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब जो है 8 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई 2/8। अब ये क्या हो गया, ये 16 हो गया। ध्यान रखिएगा, ये भी t है, ये भी t है, ये 16t हो गया, ठीक है ना। मैंने चलो यहां पर 16t मैं बोल देता हूं। अब ये बराबर होता है, इक्वल टू होता है 10t + 6t, और वी नो दैट 1h = 10t, तो यहां पर हो गया 1h + 6t। तो अब क्या करना है, ये t है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर कोई जरूरत नहीं है जो, अब यहां पर 1 क्या हो गया, 8 × 16, यस। अब ये आपका जो है, अभी यहाँ पर थोड़ा मैं मिस्टेक कर गया हूँ, थोड़ा यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा मैं ये 16t तक यहाँ पर ठीक है, ये आपका 16t तक ठीक है। अब यहाँ पर मैं गलती कर गया, ये 16 हो गया, t भी मिटा सकते, चलिए रखिए कोई बात नहीं, टी ही रहेगा जो है। अब देखिए स्टेप 5, स्टेप स्टेप 5। अब क्या करना है कि 16 में 4 को ऐड करना है, तो यहां करिए ऐड 16t विद 4t कैरिड ओवर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16t + 4t = 20t। बात समझ में आया। और 20t =
20t इज इक्वल टू 2h, लेकिन 0 नहीं है तो इसको आप लिख सकते हो प्लस 0t। 0t का कोई मतलब नहीं है। वाई हैव रिटन दिस थिंग, बिकॉज अब 0 जो है t के नीचे आ जाएगा, एंड देयर इज नो हंड्रेड्स, तो यहां पर हंड्रेड्स लिखिए और इसके नीचे लिखिए आप 2। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, अब इसी को देखिए। स्टेप 6, राइट 0 बिलो t of sum and make a provision of h, मैंने h का प्रोविजन बनाइए, बन गया प्रोविजन। फिर स्टेप 7, राइट 2 बिलो h ऑफ प्रोडक्ट। गड़बड़ा जा रहा है। राइट बिलो टी ऑफ, यहां भी देखिए प्रोडक्ट होना चाहिए, यहां भी प्रोडक्ट होना चाहिए और यहां भी प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आप लिख दीजिए, तो दिस इज द रिजल्ट। ये मैं इसलिए दिया था क्योंकि यहां पर देखिए, वंस यू मल्टीप्लाई दिस टू 8, 4 शुड बी एडेड, ऑल टी है देखिए, तो टोटल बिकम्स टी 20t, 20t इज इक्वल टू 20t प्लस 0 वंस, क्योंकि 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, 0 वंस नहीं 0t, क्योंकि तो इसलिए हमने ये एग्जाम्पल दिया था। इस तरह के क्वेश्चन में दूंगा तो उस तरह के करना होगा। अब देखिए, मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं जो लड़कों को करना है। Question for practice based on these 3 examples and also the examples given in a multiplication in my previous lectures. ये बहुत जस्ट ये टेस्ट करना है कि लड़के पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और यहां पर मैं हिंट नहीं देने जाऊंगा। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चंस for practice. I have prepared my lecture in such a way that even poor student do not have the book, he can write the question and answer. अब देखिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, there are 45 pages, 5 pages in a notebook. And there are 8 such notebook. Question is find the total numbers
total numbers of pages. This is question 1. Question 2. There are 20 erasers in a pocket. And there are 9 pockets. Find out the total numbers of eraser. अब देखिए क्वेश्चन 3. Just it is a multiplication. A 14 into 5. B 23 into 6. C 10 into 0. D 65 into 1. E 14 into 6. F 63 into 9. G 83 into 7. Now here, ask the student to write one sentence also, multiplicand, multiplier, product. Then each question should be solved with the help of examples given in the past. अब देखिए क्वेश्चन 5. Question 5. Question 4. Write the number name बीच बीच में क्वेश्चन से जो है नंबर नेम ऑफ प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा बना दिया गया कि प्रोडक्ट करिए पहले, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन tables from 6 to 10. अब ये सब फोर्स किया जा रहा है कि बच्चे पढ़ें और टीचर्स को पता लगे कि बच्चे को क्या पता है. अब क्वेश्चन 5. Write
multiplication fact, facts by using repeated addition. For the following. अब देखिए, अब यहाँ पर हम दिए हैं 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = जो भी यहाँ पाएगा, दिस इज द एडिशन फैक्ट, दिस इज द एडिशन फैक्ट. That means how the addition fact can be written in the multiplication fact. और ध्यान रखिए, फैक्ट्स नहीं होना चाहिए, कहीं पर मैं फैक्ट्स लिख दिया हूं, वहां पर फैक्ट होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए, फैक्ट. अब लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जो थोड़ा वो भी करेगा कि उसको बच्चे को टेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है. और इस लास्ट क्वेश्चन को आप कह सकते हैं 6th क्वेश्चन 6. और ये फिल अप द मिसिंग नंबर, fill up the missing number और न्यूमरल्स भी मैं बोल रहा हूं, दोनों एक ही चीज है. न्यूमरल्स and write their number and write their number name. अब क्या है, 2 क्वेश्चन में दे रहा हूं, ए और ask the students to make such things like this. और मैंने एक रेक्टेंगल इधर से दे दिया, बड़ा बड़ा दीजिए, कंजूसियाई ना, बहुत बच्चे बहुत कंजूसियाई करते हैं. ask them to write big letters. और फिर एक मैं यहाँ पर क्रॉस कर दिया इसी रेक्टेंगल का जो है. अब यहाँ पर मैंने जो है ये ब्लैंक खोला है और यहाँ पर मैं लिखा हूं 6 × = 54. He should say what can be 6, what can be number here. This is the multiplicand. So basically he has to ask the multiplier, then this thing. Then here 8 × = 72. कहने का मतलब प्रोडक्ट दिया हुआ है, अब मल्टीप्लिकेंट यहाँ दिया, मल्टीप्लायर लिखना है आपको यहाँ पर. तो एक ही होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए. उसी तरह से बी हियर, आई एम मेड एंड सिमिलर वे, बड़ा बना दिया. अब देखिए यहां पर क्या है कि मैं यहां पर वो दे रहा हूं, आप मल्टीप्लेन कहिए जो भी कहिए, और यहाँ पर 1 × 2 भी मैं दे रहा हूँ. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, = क्या होना चाहिए वो लिखे. फिर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 0 × 2 और यहाँ लिखे कि ये क्या होना चाहिए. तो ये एट रैंडम क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट को
टीचर्स को भी पता होना चाहिए स्टूडेंट जानता है कि नहीं जानता है। सम टाइम स्टूडेंट एब्सेंट हो जाता है एग्जामिनेशन, उसी बेसिस पर पास किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज माई एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर ऑफ मल्टीप्लिकेशन।